Competitive advantage using Michael Porter's generic strategies. It is a set of unique features of a company and its products that are perceived by the target market as a significant superior to the competition. Set of unique features of a company. In other words, an organization is said to have competitive advantage if profitability is higher than the average profitability for all the companies in the industry. If you don't have like Jack Welch ने कहा था, if you don't have a competitive advantage then don't compete, क्योंकि कोई फायदा नहीं है. कंपटीशन में तभी मजा है अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो. इफ यू डोंट हैव एनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देन डोंट compete. Key characteristics of competitive advantage: transferability, durability, imitability, and appropriability. So key characteristics of competitive advantage के हम क्या देख रहे हैं? Key characteristics of what? Competitive advantage. Transferability मतलब it should be tough. It should not be easily transferred. Durability, it should last long. Imitability, it should be nearly impossible to imitate. Imitability should be nearly impossible, and appropriability should have good return on investment to the right people. So transferability should be tough. It should not be able to transferred easily, and durability should be long, and imitability impossible ही कर दो, and appropriability should have good return on investment to the right people. Right people को good return on investment मिलना चाहिए. Michael Porter's generic strategy. Competitive scope, competitive advantage. Michael Porter's generic strategy. तो इधर लेफ्ट साइड में है कॉम्पिटिटिव स्कोप एंड ऑन डाउन है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो अगर आपका ब्रॉड मार्केट होता है, एक ब्रॉड टारगेट होता है, एक नैरो टारगेट होता है, एक लो कॉस्ट सर्विसेज होती है, एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती है. तो अगर आपका ब्रॉड टारगेट है, टारगेट आपका ब्रॉड है, आपको बहुत ज़्यादा लोगों को कवर करना है, लेकिन अगर आपका कॉस्ट कम है, योर कॉस्ट इज लो, तो आप कॉस्ट लीडरशिप कहलाओगे. लेकिन अगर आपका टारगेट भी कम है और आपका कॉस्ट भी कम है, तो ये हो गया फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप. व्हाट? फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप. अगर आपका ब्रॉड टारगेट है लेकिन आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन. और अगर आपका नैरो टारगेट है और आप फिर भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील करते हैं, तो ये हो गया फोकस्ड डिफरेंशिएशन. ओके. Michael Porter's generic strategy. Cost leadership. Striving to be a low-cost producer in an industry can specifically be effective. Striving to be low-cost producer, if you want to be the low-cost in the industry, especially be effective. If you're a low-cost producer, you should be effective.
When the market is composed of many prices and there are sensitive buyers, when there are few ways to achieve product differentiation, then we choose cost leadership. Market is composed of many prices and sensitive है हमारे buyers. Okay, and there are only few ways to achieve differentiation. So इस केस में अगर आप लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनते हो तो वो इफेक्टिव होता है, लेकिन कुछ रिस्क भी है. रिस्क है कॉस्ट लीडरशिप के, कुछ रिस्क है कि कॉम्पिटिटर्स में इमिटेट द स्ट्रैटेजी, वो भी अपने प्राइस कम कर लेंगे, देयरफॉर ड्राइविंग ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिट से डाउन, तो इंडस्ट्री का पूरा प्रॉफिट डाउन चला जाएगा. That technological breakthrough in the industry may make this strategy ineffective. If the technological breakthroughs are there in the industry, so you have to replace the technology. So your strategy would be ineffective. That buyer's interest may swing to other differentiating features besides price. हमेशा प्राइस के पीछे थोड़ी भागेंगे, हमें अच्छा फीचर वाला प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम वहां चल जाएंगे. Achieving cost leadership strategy. To achieve cost leadership, आपको ये actions could be taken. Prompt forecasting of demand of product and service. आप पहले से ही demand and प्रोडक्ट एंड सर्विस का डिमांड फोरकास्ट करके रख लो. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव कॉस्ट एडवांटेज. आप अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो, ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, ताकि आप कॉस्ट एडवांटेज अचीव कर सको. अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, thus lower per unit cost of product. अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेते हो, आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका पर यूनिट कॉस्ट कम हो गया है, तब हम लोग कॉस्ट लीडरशिप हम अचीव कर सकते हैं. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर मास प्रोडक्शन टू यील्ड लोअर कॉस्ट पर यूनिट. हाँ, तो आप प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर दो ताकि आप मास प्रोडक्शन कर सको, ज़्यादा प्रोडक्शन करो और आपका जो लोअर है कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए. फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है मैकडॉनल्ड्स का, कि मैकडॉनल्ड्स स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, मैकडॉनल्ड्स की इतनी सारी फ्रेंचाइज हैं, आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी फूड चेन में चले जाओ मैकडॉनल्ड्स के, आपको सेम टेस्ट मिलेगा, बर्गर का आपको सेम टेस्ट मिलेगा. उन्होंने अपना भूख लग गई, उन्होंने अपना प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज कर दिया है फॉर मास प्रोडक्शन. वो स्टैंडर्ड कर दिया, अब उसी हिसाब से वो मास प्रोडक्शन करते जाएंगे, उनका कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कॉस्ट पर यूनिट अपने आप कम हो जाता है. Invest in cost saving technologies and using advanced technology for smart efficient working. अगर आप cost saving technologies के पीछे भागते हो, आप ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो जहाँ पे स्मार्ट एफिशिएंट वर्किंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट कम होगा और आप कॉस्ट लीडर बन जाओगे. रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन, आप डिफरेंशिएशन मत करो until it becomes essential. May swing to other differentiating features besides price. क्योंकि आप ज़्यादा देर तक आप इसको होल्ड करके नहीं रख सकते, आप डिफरेंशिएशन को होल्ड करके रखो. हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना, हम कॉस्ट लीडरशिप पे ही रहेंगे जब तक हो सकता है, बट बाद में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि बाद में लोग फीचर्स के पीछे भागते हैं, प्राइस के पीछे नहीं. डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं आप. Differentiation. This strategy is aimed at broad mass market and involves the creation of product or service that is perceived by the customer as unique. You have to create that kind of product or service
that is perceived by the customer as unique. Uniqueness कैसी हो सकती हैं? प्रोडक्ट डिज़ाइन यूनिक हो सकता है, आपका ब्रांड इमेज यूनिक हो सकता है, फीचर्स यूनिक हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूनिक, डीलर नेटवर्क यूनिक, कस्टमर सर्विस यूनिक। तो ब्रॉड मार्केट में आप ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्रिएट करो जो लोगों को यूनिक लगे। और यूनिक कैसे लगे? प्रोडक्ट डिजाइन से भी हो सकता है, ब्रांड इमेज से भी हो सकता है, फीचर से भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी से, डीलर नेटवर्क, कस्टमर सर्विस, इन सब में से किसी से भी यूनिक हो सकता है, तब वो डिफरेंशिएशन कहलाएगा। लेकिन एक रिस्क है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी परस्यू करने में, दैट यूनिक प्रोडक्ट्स मे नॉट बी वैल्यूड हाई इनफ बाय द कस्टमर to justify the higher price। तो आपका यूनिक प्रोडक्ट है बट आपका हाई प्राइस है, बट कस्टमर को नहीं लगता ना कि ये वैल्यू आपकी मे नॉट बी वैल्यूड हाई इनफ बाय कस्टमर। लेकिन आप टू जस्टिफाई तो इतनी वैल्यू नहीं करेंगे कस्टमर्स। आपने प्राइस इतना बढ़ा के रख दिया है, आपका प्रोडक्ट भले ही ज़्यादा अच्छा होगा बट उसका कस्टमर वैल्यू नहीं कर रहा है, ऐसी बात बोल रहे हैं। व्हेन दिस हैपन तो कॉस्ट लीडरशिप जीत जाता है, क्योंकि उसका प्राइस कम है, इजीली डिफीट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को हरा देता है। Another risk of differentiation strategy is that competitors may develop ways to copy differentiating features quickly। अब क्या है, कॉम्पिटिटर्स कॉपी कर लेते हैं जल्दी से जो भी डिफरेंशिएशन फीचर्स होता है, तो ये एक अनदर रिस्क है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का। अगर आप डिफरेंशिएशन अचीव करना चाहते हैं तो आपको फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कुड बी अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑफर करो यूटिलिटी टू कस्टमर्स एंड मैच प्रोडक्ट्स विद देयर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, elevate, improve performance of the product, offer high quality product for buyer satisfaction, rapid product innovation to keep up डायनामिक इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट कैसा होता है? डायनामिक होता है, तो रैपिडली चेंज आते रहते हैं, तो आपको रैपिडली प्रोडक्ट इनोवेट भी करना होगा ताकि आप इन्वायरमेंट के साथ सिंक्रोनाइज चल सके। टेकिंग स्टेप्स फॉर इनहांस ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू को इनहांस करने के लिए स्टेप्स लेना चाहिए। आपको प्रोडक्ट प्राइसेस फिक्स करने चाहिए उनके यूनिक फीचर्स के बेस्ड पे एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ कस्टमर पे भी। तो अचीव करना है डिफरेंशिएशन, तो आप यूटिलिटी प्रोवाइड करो कस्टमर्स को, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से मैच करो अपने प्रोडक्ट्स को, इम्प्रूव करो परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस देना है बायर के सेटिस्फैक्शन के लिए। आपको रैपिडली इनोवेशन भी करना होगा साथ ही साथ डायनामिक इन्वायरमेंट के साथ, एंड इनहेंस करो ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू को, प्रोडक्ट प्राइसेस को उनके यूनिक फीचर्स के बेसिस पे सेट करो एंड बाइंग कैपेसिटी के ऊपर सेट करो। फोकस्ड, फोकस, 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 focused strategy, green color, green focused। A successful focused strategy depends on an industry segment that is of sufficient size, has good growth potential, is not crucial to the success of other major competitors। सक्सेसफुल फोकस स्ट्रैटेजी तब होगी जब एक इंडस्ट्री सेगमेंट है जहाँ पे सफिशिएंट साइज है एंड ग्रोथ पोटेंशियल भी है, बट अदर कॉम्पिटिटर्स की नज़र में वो इतना क्रूशियल पार्ट नहीं है सक्सेस का। स्ट्रैटेजीज सच एज मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट ऑफर सब्सटैंशियल फोकसिंग एडवांटेज। तो मार्केट पेनिट्रेशन यानी कि न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट यानी कि न्यू प्रोडक्ट न्यू डेवलपमेंट, तो ये ऑफर करते हैं फोकसिंग एडवांटेज। मिड साइज एंड लार्ज फर्म्स कैन effectively pursue focus based on strategies
only in conjunction with differentiation and cost leadership based strategies. तो मिड साइज एंड लार्ज साइज फर्म्स फोकस्ड स्ट्रैटेजी को परस्यू कर सकती है विथ मिक्स करके डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप के साथ मिक्स करके. तो मतलब ऑल फर्म्स इन एसेंस फॉलो अ डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी. तो हर फर्म एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, राइट. डिफरेंशिएटेड यानी कि वो सिर्फ फोकस, सिर्फ कॉस्ट, सिर्फ डिफरेंशिएशन मिक्स करके, है ना, कॉम्बिनेशन से. बिकॉज ओनली वन फर्म कैन डिफरेंशिएट इटसेल्फ विद द लोवेस्ट कॉस्ट. द रिमेनिंग फर्म्स मस्ट फाइंड अदर वेज टू डिफरेंशिएट. इसलिए हर फर्म्स अलग होती है. Best cost providers strategy. 5 generic competitive advantage. Market target, broad cross section of buyers, narrow market segment. Lower cost, differentiation. We are studying best cost provider strategy. If your market target is broad and cost is lower, then it is low cost leadership strategy. But market is broad and it is differentiated, broad differentiation strategy. Market is narrow, cost is also low, focused low cost strategy. Market is narrow, differentiation is there is differentiation, focused differentiation strategy. Okay, so there is one question. Mayank, the marketing wizard of ice cream continually urges the product and design team to dedicate 50% of their 90% of their efforts to creating a menu that aligns with customer preferences. Ice cream target aims to target broad markets, kids and couples. Based on this scenario, which aspect of business environment is Mayank focusing on? Cost reduction measures and operational efficiency improvement. In the turnaround strategy, cost reduction measures and operational strategy improvements are primarily focused on different companies facing financial. I think this उन्होंने थोड़ा गलत दे दिया है, तो इसको हम काट देते हैं, इनको नहीं पढ़ते. क्वेश्चन उन्होंने अलग लिखा है, आंसर कुछ और लिखा है. या किसी और को समझ आ जाए तो मेरे को भी बता देता, क्योंकि ये तो मेरे को नहीं आया समझ. चलो तो ठीक है, ये वाला चैप्टर फिनिश होता है यहाँ फाइनली.